Hello everyone. Today we are going to deal with a new topic that is a crassulacean acid metabolism that is known as CAM. Okay, so here this is a cycle which is happening in a few plants only, especially the plants which are growing in a area where there is a scarcity of water, and in that category you must be knowing very well about the cactus. ठीक है, so we are talking about that one only. ठीक है, so certain plant especially succulent means the sort of they are having the sort of spines on their body, but internally their tissue is a sort of tissue which is storing the water, which grow under extreme xeric condition. बेटा यहाँ पे xeric condition का मतलब है डेजर्ट स्पेशली. ठीक है, फिक्स एटमॉस्फेरिक CO2 इन डार्क. ये CO2 का फिक्सेशन कब करते हैं? दे आर डूइंग इट इन द डार्क, मीन्स व्हेन देयर इज नो सनलाइट. ठीक है, since the process was first observed in the plant belonging to the family Crassulaceae, example it's happening Bryophyllum, Calench, Sedum. ठीक है, किस में होता है? ब्रायोफिलम में, कैलेंचोए में और सीडम में. ये कुछ एग्जाम्पल है क्रेजुलेसी फैमिली के. इट वॉज टर्म्ड क्रेजुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म. तो क्योंकि ये इस पर्टिकुलर फैमिली में ही पाया जाता है, इसीलिए इसको क्रेजुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कैम. Similar metabolism has been found to occur in plants belonging to cactus, opuntia, orchid, Partulaca, and pineapple families. All these plants which carry out crassulacean acid metabolism are referred to as. इन जिन सभी plants में ये metabolism होता है, यानी कि crassulacean acid metabolism होता है, उनको CAM plants बोलते हैं, CAM plants. The most characteristic feature of these plants is that their stomata remain open at night. ये इसका सबसे important point है. इसमें स्टोमेटा जो होते हैं नाइट में ओपन होते हैं. अदरवाइज यू माइट हैव स्टडीड अबाउट दैट स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग नाइट्स. ठीक है, तो नाइट के समय क्लोज रहते हैं, बट इनके स्टोमेटा नाइट में ही खुलते हैं. क्यों? रीजन भी है बेटा उसका, क्योंकि दे आर ग्रोइंग इन अ डेजर्ट एंड इन that area particularly there is a temperature is too much high, and if their stomata are going to open during the day, then there is a high chance of transpiration, and although they are there in a scarcity of water, and if the transpiration rate will be high during the day, if the stomata will be open, then the chances of survival of the plant is very very less. ठीक है, ऑलरेडी स्कार्सिटी में है और बचा हुआ बॉडी का पानी भी पूरा इवेपोराइज हो जाएगा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली प्लांट सर्वाइव ही नहीं करेगा. इसीलिए ड्यूरिंग डे उनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं. इवन लीव्स जो होती हैं, आपने कैक्टस में पढ़ा भी होगा, रिड्यूस होकर के स्पाइन लाइक हो जाती हैं. इवन जो स्टेम होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए कभी कभी वो लीफ के जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है. ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ज़िरिक प्लांट्स में होते हैं. And the stomata are closed during the day in light especially. The CAM is a kind of adaptation in succulents to carry out फोटोसिंथेसिस विदाउट मच लॉस ऑफ वाटर. ज़्यादा पानी का लॉस ना हो, तो उनमें एक ही अडेप्टेशन है सकुलेंट प्लांट्स में. किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए. Okay, the metabolic pathway of CAM involves acidification, which occurs at night during dark, and de-acidification. But when we are talking about the acidification, during acidification there will be the fixation of carbon dioxide, and during de-acidification the carbon dioxide will be released inside over. Okay, which occur during the daytime. During night, the organic acid content of CAM plants increase. तो क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट द ऑर्गेनिक एसिड इनके अंदर जो होते हैं वो कंटेंट CAM में इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पीएच ऑफ द सेल सैप डिक्रीजेस. ऑर्गेनिक एसिड बढ़ने की वजह से पीएच सेल सैप यानी कि सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट जो है उसके अंदर का पीएच डिक्रीज होने लगेगा. वेयर एज ड्यूरिंग द डे द ऑर्गेनिक एसिड कंटेंट डिक्रीजेस, और अल्टीमेटली क्या होगा? पीएच इंक्रीज होगा. सिमिलरली द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल स्टार्च इंक्रीजेस ड्यूरिंग द डे, जिसकी वजह से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जो है यानी स्टार्च जो है उसका कंसंट्रेशन डे टाइम में इंक्रीज होगा और नाइट टाइम में डिक्रीज होने लगेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द CAM.
नाउ अब ये पाथवे में केमिकल रिएक्शंस कौन से इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स सी द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कैम in dark during night when the stomata are open the carbon dioxide combines with phosphoenol pyruvic acid. ठीक है, ये रहा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है स्टोमेटा से। ये कंबाइन होने के बाद क्या बना लेते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड व्हेन स्टोमेटा इज ओपन। ठीक है, तो ये आपने बना लिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें क्या देखा आपने, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड कंबाइंड विद CO2 एज वेल एज H2O, इट गिव्स ऑक्सैलोएस्टिक एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। Now oxaloacetic acid is subsequently converted to malic acid in the presence of enzyme malic dehydrogenase। अब ये जो malic acid oxaloacetic acid है, ये एंजाइम मेलिक डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा मेलिक एसिड में। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है, ये वैक्यूल में हो रहा है बेसिकली। ओके, द रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ NaDH। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिएक्शन NaDH की प्रेजेंस में हो रही है एंड NaDH इज गोइंग टू गेट रिड्यूस इनटू NAD। ठीक है, एज वेल एज अ मैलिक एसिड विल बी प्रोड्यूस इनसाइड द वैक्यूल। मैलिक एसिड प्रोड्यूस इन द डार्क एज अ रिजल्ट ऑफ एसिडिफिकेशन इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। तो बेटे ये एसिडिफिकेशन की वजह से बना है मैलिक एसिड यहाँ पे, और ये वैक्यूल में स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन द प्रोसेस is a de-acidification which is going to happen in the क्लोज स्टोमेटा। जब ये मैलिक एसिड जो है आपका, ये स्टोमेटा क्लोज होने के बाद की रिएक्शन है। द लाइट ड्यूरिंग डे में अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैलिक एसिड है जब स्टोमेटा क्लोज हो चुका है तब क्या करेगा, दिस मैलिक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू प्रोड्यूस pyruvic acid। It is going to produce a pyruvic acid and it will be evolving carbon dioxide also when it will be getting converted into pyruvic acid from malic acid। ठीक है, जब ये कन्वर्ट हो रहा होगा तब CO2 को रिलीज भी कर रहा होगा और इस रिएक्शन में NAD यहाँ पे जो रिड्यूस हुआ था, अब ये ये NAD अब फिर से NADH में कन्वर्ट होकर के रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, NAD इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू NADH और ये CO2 प्रोड्यूस हुआ है, CO2 एंटर करेगा केल्विन साइकिल में। ठीक है, द पायरुविक एसिड में बी ऑक्सीडाइज बाय CO2। ये जो पायरुविक एसिड यहाँ पे बना है ये हो सकता है CO2 की वजह से रिड्यूस कर दिया जाए, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल में एंटर होकर के, और might be there is a possibility that it is going to reconvert into phosphoenol pyruvic acid. Okay, so next process, the carbon dioxide released by deacidification is accepted by ribulose biphosphate। तो बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है ये डीएसिडिफिकेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द RUBP। ठीक है, दैट इज राइबुलोज बाइफॉस्फेट एंड इट विल बी फिक्स टू कार्बोहाइड्रेट बाय C3 साइकिल, और यहाँ पे C3 साइकिल में ये फिक्स कर दी जाएगी सो एज टू प्रोड्यूस अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, so this is happening inside the cytosol। So this was the process which is happening especially in case of granulation family members। Okay, so this is what is known as CAM। So that's all for today। Okay, do this much for today and this chapter is almost completed। Okay, so next we will be dealing with the new chapter, that is respiration।